اور ہیڈ لائنز کے بعد اب خبروں کو تفصیل سے جانیں گے۔ آسام کے بعد مہاراشٹر میں NRC کی تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں۔ ذرائع کے مطابق مہاراشٹر کی وزارت داخلہ نے نوی ممبئی پلاننگ اتھارٹی سے ایک حراستی مرکز کی تعمیر کے لیے زمین فراہم کرنے کو کہا ہے۔ تاہم مہاراشٹر حکومت کے حکام کے مطابق اس حراستی مرکز کا NRC سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ خاص رپورٹ۔ آسام کے بعد اب مہاراشٹر۔ کیا مہاراشٹر میں NRC کی ہو رہی ہے تیاریاں؟ نوی ممبئی میں حراستی کیمپ بنانے کی تیاری۔ آسام کے بعد اب ایسی خبریں ہیں کہ ریاست مہاراشٹر میں بھی NRC لاگو کرنے کی تیاری ہو رہی ہے۔ ذرائع کے مطابق مہاراشٹر کی وزارت داخلہ ریاست میں غیر قانونی طور پر رہ رہے لوگوں کو حراست میں رکھنے کے لیے حراستی مراکز بنانے کی تیاریاں کر رہی ہے۔ مہاراشٹر کی وزارت داخلہ نے نوی ممبئی پلاننگ اتھارٹی سے ایک حراستی مرکز کی تعمیر کے لیے زمین فراہم کرنے کو کہا ہے۔ وزارت داخلہ نے نوی ممبئی میں 2 سے 3 ایکڑ اراضی دینے کو کہا ہے۔ نوی ممبئی سے صرف 20 کلومیٹر دور ہے۔ وہیں مہاراشٹر حکومت نے وضاحت کی ہے کہ حراستی مرکز کی تعمیر کے سلسلے میں زمین کی نشاندہی کے معاملے کا NRC سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ رپورٹ کے مطابق ممبئی پولیس نے غیر قانونی طور پر پاسپورٹ بنانے والے شہریوں کو حراست میں رکھنے کے لیے حراستی مرکز بنانے کی تجویز پیش کی تھی، جس کے بعد جولائی 2017 میں ہی اس سلسلے میں کارروائی کا آغاز کیا گیا تھا اور اس حراستی مرکز کا NRC سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ویسے تو وزیر داخلہ امت شاہ نے انتخابی مہم کے دوران ہی اعلان کیا تھا کہ مودی حکومت پورے ملک میں NRC لاگو کرے گی اور آسام میں اس تعلق سے حتمی فہرست 31 اگست کو جاری بھی ہو گئی ہے اور آسام کے 19 لاکھ لوگوں کے نام اس فہرست میں نہیں ہیں۔ جن افراد کے نام فہرست میں نہیں ہیں ان میں کئی افراد کا تعلق فوج اور دیگر محکموں سے بھی ہے۔ بیورو رپورٹ، نیوز 18 اردو۔ اور وہیں RSS نے NRC کو مشکل اور پیچیدہ قرار دیا ہے۔ اجمیر میں RSS کوارڈینیشن کی میٹنگ کے بعد پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے سنگھ کے جوائنٹ جنرل سیکرٹری دتاتریہ ہوسابلے نے واضح کیا کہ آسام کی NRC میں جو خامیاں ہیں حکومت کو اسے درست کرنے کے بعد آگے بڑھنا چاہیے۔ تاہم RSS نے NRC کے عمل کا خیر مقدم کیا۔ NRC کے بارے میں ایک ورتمان جانکاری کیا ہے وہ رکھا گیا، ایسے ہے کہ NRC کے سندرب میں NRC تو کیا سپریم کورٹ کے کہنے کے ان کے نردیش کے کارن آسام سرکار نے ایک نشچت سمے میں ان کو کرنا تھا۔ NRC از اے ویری کمپلیکیٹڈ کمپلیکس ایشو، سروے کرنا بھی اتنا آسان نہیں تھا۔ ہمارے کہنا ہے یہ کیا ایک اچھا کیا، کیونکہ ایک کر سکتے ہیں، ایک ماڈل تو بنا، ہاں اس میں کچھ کمیاں ہیں، کچھ دوش ہیں، ان چیزوں کو دور کرتے ہوئے اس کے آدھار پر کریانوین کے آگے کے سٹیپ کو سرکار کو طے کرنی ہے۔ NRC رپورٹ اٹ سیلف از ناٹ اے رول نہیں ہے، قانون نہیں ہے، اس کو کیسے کرنا چاہیے۔ یہ تو NRC کا ایک رپورٹ آیا، اس کے آدھار پر سرکار کو آگے کے سٹیپ سوچنے چاہیے، اور اس رپورٹ میں کچھ کمیاں بھی ہو سکتی ہے، لوگوں نے اس کا آواز بھی اٹھایا ہے، واجب بھی ہے، تو اس لیے اس کو دیکھ کر اس میں کچھ درست کرتے ہوئے آگے کے بعد سوچنا چاہیے، بٹ واٹ ایور دے ہیو ڈن وی ویلکم اٹ۔ اور پریس کانفرنس میں ہجومی تشدد سے متعلق ایک سوال کے جواب میں دتاتریہ ہوسابلے نے واضح کیا کہ سنگھ قانون کی خلاف ورزی اور قانون کو ہاتھ میں لینے کے خلاف ہے۔ سماج میں ہنسا کے کسی بھی پرکار کو ہم سمرتن نہیں کرتے۔ قانون کو اپنے ہاتھ میں اٹھانے کا ادھیکار کسی کو نہیں ہے، لیکن قانون پالن ہو اس کے لیے آگرہ کرنے کا ادھیکار پرجاتنتر میں ہے۔ لوگ اس ادھیکار کا اپیوگ کرے، ہنسا میں اترے نہ، یہ سنگھ کا کہنا ہے، باقی وشے کیندر سرکار کو جواب۔ MIM کے رکن پارلیمان اور ریاستی صدر امتیاز جلیل نے ونچت بہوجن اگھاڑی کے صدر پرکاش امبیڈکر کے تعلق سے دبے الفاظ میں اس خدشے کا اظہار کیا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ RSS سے قربت رکھنے والے لوگوں نے انہیں ورقلا دیا ہو، اسی لیے وہ MIM کے ساتھ جانے میں پس و پیش کر رہے ہیں۔ امتیاز جلیل اورنگ آباد میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے۔
आज इतकी एक मोठी संधी मिळालेली आहे आपल्याला सत्तेमध्ये जाण्याची आणि हे सगळ्यांना माहीत आहे. मी असं नाही म्हणतो की बाळासाहेब कुठेतरी चुकले आहे. तुम्ही सामान्य जनतेशी बोला, वंचित बहुजन आघाडीच्या कार्यकर्त्यांना बोला, भारिपच्या कार्यकर्त्यांना किंवा त्यांच्या नेत्यांना बोला आणि विचारा त्यांना की हे जे 8 सीट MIM ला दिलेले आहे हे खरं आहे का, हे मतलब चांगलं आहे का, इसमें ते काय प्रतिसाद देते तुम्हाला खुद ठरवता येईल. मला तर असं वाटतं की काही RSSचे लोक त्यामध्ये घुसलेले आहे का, की RSSचे लोकांनी असं त्यांच्या कानात काही बोलले आहे का की MIMची सोबत आपण युती नको करायला हवी. तर हे काहीतरी मतलब माझ्याकडे काहीही त्याचं उत्तर नाही आहे. अक़लियती उमूर के मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि मोदी हुकूमत ईमान, इंसाफ और इकबाल की बुनियादों पर काम कर रही है. मोदी हुकूमत के 100 दिन मुकम्मल होने पर इलाहाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने ये बात कही. मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि मोदी हुकूमत बिला तफरीक समाज के हर तबके की तरक्की के लिए मुसलसल काम कर रही है. हमारी सरकार जब समावेशी विकास की बात करती है, सर्वस्पर्शी सशक्तिकरण की बात करती है, तो उसमें अल्पसंख्यक भी हैं. हम जो है वो अल्पसंख्यकों का हमारा संकल्प है कि बिना तुष्टीकरण, सशक्तिकरण, बिना भेदभाव के विकास, डेवलपमेंट विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, एम्पावरमेंट विदाउट अपीजमेंट, इस संकल्प के साथ हम काम करते हैं. और उसमें हमने जो है वो पिछली बार हमने बताया 3 करोड़ 18 लाख से ज़्यादा स्कॉलरशिप दी. इस साल इन 5 सालों में हम 5 करोड़ स्कॉलरशिप देंगे. हमारा लक्ष्य है कि हम जो रोज़गार और रोज़गार के मौके, पिछली बार हमने 8 लाख से ज़्यादा जो दस्तकार, शिल्पकार, कारीगर हैं उनको रोज़गार के मौके मुहैया कराए. इस बार हमारी कोशिश है कि हम बड़ी संख्या में दस्तकारों, शिल्पकारों, कारीगरों को हम रोज़गार के मौके मुहैया कराएं. झारखंड में उर्दू जबान हुकूमत की बेतवज्जोही का शिकार है. उर्दू के साथ हो रही नाइंसाफी के खिलाफ उर्दू टीचर्स एसोसिएशन का वजूद अमल में आया है और इस तंजीम ने उर्दू जबान को उसके जायज हक के लिए जोरदार तहरीक चलाने का फैसला कर लिया है. खास रिपोर्ट. झारखंड में उर्दू जबान के साथ सरासर नाइंसाफी हो रही है. झारखंड उर्दू शिक्षक संघ का इल्जाम है कि रियासत में उर्दू जबान को खत्म करने की साजिश की जा रही है. न तो रियासत के स्कूलों में माकूल तादाद में उर्दू असातिज़ा को बहाल करने की कोशिश की जा रही है और न ही उर्दू किताबें फराहम की जा रही हैं. सितम ज़रीफ़ी तो ये है कि उर्दू स्कूलों को हिंदी स्कूलों में ज़म करने की कोशिश हो रही है. उर्दू के साथ मसला यह है कि अगरचे ये दूसरी सरकारी ज़ुबान तो है, लेकिन ये महज कागज़ी तौर पर ये दूसरी सरकारी ज़ुबान है और कहीं अमली तौर पर ये चीज़ नज़र नहीं आती है. और अगर हम ये कहें कि उर्दू स्कूलों को भी धीरे धीरे जो है ख़त्म किया जाता रहा है, उर्दू की जो बुनियादी तालीम है वो भी बहुत अहमियत के हामिल है, लेकिन उस पर भी कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी गई. वाज़ेह रहे कि एक लंबी जद्दोजहद के बाद साल 2008 में उर्दू को रियासत की दूसरी सरकारी ज़ुबान का दर्जा हासिल हुआ, लेकिन इसका अब तक अमली निफाज नहीं हुआ है. प्राइमरी सतह से लेकर PG सतह तक उर्दू की तालीम मुतासिर हो रही है. उर्दू को उसका जायज़ हक दिलाने के लिए मुख्तलिफ तंजीमें लगातार आवाज़ें उठाती रही हैं, लेकिन अरबाब इक़्तिदार पर इसका कोई असर नहीं हुआ. अब उर्दू टीचर्स एसोसिएशन ने जोरदार तहरीक चलाने का फैसला किया है. और चूँकि हमारा झारखंड राज्य उर्दू शिक्षक संघ आज के तारीख में झारखंड में पहला रजिस्टर्ड संस्था है, इसलिए अब बेझिझक हमें इस संस्था के आगे आना होगा और इसके लिए उर्दू की हर लड़ाई, हर काम के लिए हमें आगे आकर सरकार से, विभाग से अपनी बातें रखनी होगी. जो बातें हमारी पिछले सालों जो बिहार में लागू थी अब झारखंड में नहीं है और इसको कायम किया जाना चाहिए. रियासत की तश्कील को तकरीबन 19 साल का अरसा गुजर गया है, लेकिन अब तक यहाँ उर्दू अकेडमी का क़याम नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से न तो उर्दू कलमकारों की हौसला अफजाई हो रही है और न ही उर्दू ज़बान की तरक्की के लिए कदम उठाए जा रहे हैं. न्यूज़ 18 उर्दू के लिए रांची से नौशाद आलम की रिपोर्ट.
माह मुहर्रम की पहली तारीख से अशरा मजालिस के इनेकाद के साथ साथ मातमी जुलूसों की बरामदगी का सिलसिला भी शुरू हो जाता है। इन तारीखों में मेरठ में भी शोहदाए करबला की याद में तारीखी जुलूस बरामद किए जाते हैं। इसी सिलसिले में मेरठ की छोटी करबला घंटाघर, इमाम बारगाह बनसबिया और इमाम बाड़ा पंचतनी से जरी और अलम के जुलूस बरामद किए गए। अज़ादाराने शोहदाए करबला ने कसीर तादाद में मातमी जुलूस में शिरकत करके ज़ियारत की और बारगाह हुसैनी में नजराना अकीदत पेश किया। आज जो है इमाम हुसैन सलाम का ताबूत था और जनाब अली असगर जो 6 महीने के थे और जिन्हें पानी नहीं दिया गया, उनकी शान में भी एक ताबूत था। और उसके बाद वो मौला की सवारी थी। पूरा हदफ और मकसद ये था करबला का, जो इमाम हुसैन ने अपने 72 साथियों के साथ कुर्बानी पेश की, कि हम मजलूम की मदद करें और जालिम के मुकाबले में खड़े हो जाएं। उधर रांची में भी मुहर्रम अमन भाईचारे के माहौल में मनाया जा रहा है। मुस्लिम मोहल्लों के चौक चौराहों पर अलम खड़े किए गए हैं। मुहर्रम की 9वीं तारीख को कई मोहल्लों में ढोल नगाड़ों के साथ जुलूस निकाले गए। यौम आशूरा को शहर की अहम शाहराहों पर अजीमुशान जुलूस निकाले जाएंगे। जुलूस के पेश नज़र कई शाहराहों की रूट में तब्दीली के साथ साथ सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कौन थे, इसी उन्वान के तहत बेंगलुरु में बेदारी मुहिम चलाई गई। हु इज हुसैन नामी तंजीम के नुमाइंदों ने शहर के ब्रिगेड रोड, एमजी रोड में पानी की बोतलें तकसीम करते हुए लोगों को हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का तारुफ पेश किया। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम मज़ाहिब के मानने वालों में ये बेदारी मुहिम हर साल चलाई जाती है। हु इज हुसैन के नुमाइंदों ने कहा कि हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इंसानियत, इंसाफ, मसवात पर मबनी इस्लाम के उसूलों से समझौता करने से इनकार किया और करबला की सरजमीन में हक के लिए शहीद हो गए। मारूफ दानिश्वर, आगा सुल्तान और दीगर ने कहा कि बाबा कौम महात्मा गांधी जी समेत दुनिया की तमाम बड़ी शख्सियात ने हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत से सबक हासिल किया है। एक मैसेज पूरे ह्यूमैनिटी को पहुंचाना चाहते हैं। आपको पता होगा दुनिया के जितने भी सोशल मूवमेंट लीडर्स हैं, जो रेवोल्यूशनरीज हैं, इमाम हुसैन के नॉन वायलेंट मूवमेंट से इंस्पायर होके उनके कंट्रीज़ में फ्रीडम लाके हैं। फॉर एग्जांपल नेल्सन मंडेला, सर मार्टिन लूथर किंग जूनियर, और हम एज अ प्राउड इंडियन, हमारे फादर ऑफ अ नेशन महात्मा गांधी जी जो फादर ऑफ अ नेशन हैं, वो कॉन्सेप्ट ऑफ सत्याग्रह इमाम हुसैन के नॉन वायलेंट मैसेज से इंस्पायर हुए। देखिए, पानी बांट कर भूल जाना फ़ायदा नहीं है। इमाम हुसैन एक रोल मॉडल हैं। इमाम हुसैन क्यों सैक्रिफाइस किया? आप जानते हैं कि हमारे फादर ऑफ नेशन मोहनदास करमचंद गांधी साहब ने कहा, अगर मुझे 72 लोग वैसे होते तो मैं इंडिया को आज़ादी में दिला देता। तो उन्होंने दांडी मार्च में 70 पर आदमियों को ले गए थे। उन्होंने कहा कि मैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो ज़िंदगी और उनकी कुर्बानी से सबक लेकर मैं हिंदुस्तान की आज़ादी दिलाना चाहता हूँ। हम जब अब बॉटल देते हैं तो काफ़ी लोग सामने से आके पूछते हैं कि किस लिए है, क्या है। उनको पता है हुसैन कौन है, पर उनको ये नहीं पता कि उन्होंने क्या किया, उनका मकसद क्या था, जिस लिए वो शहीद हुए, उनको वो सब नहीं पता। तो हम अच्छा लगता है बता के कि जब व्हेन पीपल कम अप फ्रॉम फ्रंट, पूछते हैं कि किस लिए, क्या, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है। सो it was a great sacrifice for us Muslims, and we want to spread more about Imam Hussain around the world. So we giving water to people is something we want to tell about Imam Hussain, and we want them also to know how Imam Hussain sacrificed. कि तमाम हमारे बेंगलुरु के यूथ मुसलमान हैं इसमें, और हिंदू भाई लोग भी हैं, जो हमारे यूथ साथ में मिलकर इमाम हुसैन के नाम से पानी बढ़ते हैं। इमाम हुसैन ने हमारे को हमेशा ह्यूमैनिटी, यूनिटी ने ही सिखाया हुआ है, पीस और मोहब्बत सिखाया हुआ है। हर साल हम यही स्पॉट पे आके सबको पानी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो लोग क्या कहते हैं आपको इस तरह काम करता हुआ देख? वो बहुत अच्छा अप्रिशिएट करते हैं, और वो भी पूछते हैं किस वास्ते बांट रहे हैं, तो हम उसको एक्सप्लेनेशन देते हैं कि याद नवासे रसूल हम आज पानी बांट रहे हैं।
औरंगाबाद शहर में भी मजालिस अज़ादारी की रिवायत 4 सदियों पर मुहित रही है। इस शहर में 250 वक्फ किए गए आशूर खाने हैं, जहां आज भी मजालिस अज़ादारी का एहतमाम पूरे तुज़्को एहतशाम के साथ किया जाता है। और ऐसे ही तारीखी आशूर खानों में शामिल है फाजिलपुरा का मोहम्मद नवाब साहब का आशूर खाना। एक रिपोर्ट। औरंगाबाद शहर अपनी तारीखी अहमियत की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। मुहर्रम के महीने में शहर के आशूर खानों में अज़ादारी की मजालिस की रिवायत काफी कदीम है। शहर के अकाबरीन का कहना है कि मलिक अंबर के दौर से ही इस शहर में आशूर खानों और मजालिस के एहतमाम का सिलसिला जारी है। माजी करीब में ईरान और दीगर ममालिक के आइमा मजालिस पढ़ने के लिए औरंगाबाद शहर को तरजीह देते थे। ये रिवायत आज भी जारी है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब मुल्क की दीगर रियासतों से आइमा मजालिस अज़ादारी में शिरकत करते हैं। ये सिलसिला यौम आशूरा तक जारी रहता है। करबला इंसानियत का पैगाम देता है और करबला जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने का नाम है। करबला इल्म मारिफत, शऊर व आगही, तरबियत और इंसानियत को बताने का नाम है। करबला से यही पैगाम दिया है कि चाहे हमारा कोई दुश्मन ही क्यों ना हो, लेकिन अगर वो पानी का खास्तगार है, अगर वो प्यासा है और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में अगर उसने पानी मांगा है, तो उस शख्स को भी इमाम ने रोका नहीं है कि जिसने इमाम के रास्ते को रोका था या जो ज़ाहिरन दुश्मन था। मौला ने इंसानियत को वाज़े किया और बताया दुनिया को कि हम इंसानियत वाले हैं और हम चाहते हैं कि सारी दुनिया में, कायनात में इंसानियत जारी रहे, सारी रहे और इंसानियत का ख्याल रखे। ये आशूर खाना सैयद मोहम्मद नवाब साहब क़िबला मरहूम का है। इससे मुत्तसिल एक देवड़ी थी पहले यहाँ पे, अली मेहदी साहब क़िबला मरहूम की देवड़ी कहलाती थी। वो वहीं के अलम यहाँ पे आबाद हुए हैं। उसके बाद से वो भी तारीख़ उनकी 250 बरस से कदीम है। और यहाँ पे 1972 में वक्फ बोर्ड की जानिब से जो सर्वे किया गया था, उसमें 250 आशूर खाने वक्फ के जमा शुदा आशूर खानों में जो वक्फ किए गए हैं, वो आशूर खानों की तारीख है। औरंगाबाद शहर में 250 आशूर खाने हैं, जिनका रिकॉर्ड वक्फ गेजेट में मौजूद है। इन आशूर खानों में चंद एक 400 साल कदीम आशूर खाने भी हैं। इन आशूर खानों में मजालिस अज़ा का एहतमाम होता है। दीवान देवड़ी में वाक़या सालार जंग आशूर खाना 300 साल कदीम आशूर खाने हैं। ये आशूर खाने न सिर्फ मजहबी एतबार से अहमियत के हामिल हैं, बल्कि इन्हें आलमी विरसे में शुमार किया जा सकता है। जुलूस अज़ा कम अज़ कम यहाँ पे 100 साल कदीम जुलूस अज़ा है, जो इसी मुकाम से निकलता है। इससे मुत्तसिल देवड़ी थी, यहाँ से निकल के पूरा शहर गर्द करता हुआ आशूर खाना दीवान देवड़ी जाता है। इस औरंगाबाद में 52 दरवाजे, 52 खिड़की और 52 ताज़िए हुआ करते थे एक ज़माने में। अल्हम्दुलिल्लाह हम हिंदुस्तान में रहते हैं और हिंदुस्तान वो मुल्क है कि जहाँ पर आज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस आज़ादी के साथ और जिस हुस्न खूबी के साथ अंजाम पाती है, दुनिया के और किसी भी ममालिक में ऐसा नहीं है। औरंगाबाद शहर को ये इनफरादियत भी हासिल है कि यौम आशूरा के रोज इस शहर में शिया और सुन्नी जुलूस एक ही रास्ते से गुजरते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, लेकिन कभी कोई तनाज़ या कशीदगी नहीं हुई। इस एतबार से ये शहर पूरे मुल्क में शिया सुन्नी इत्तेहाद की अलामत कहा जा सकता है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए औरंगाबाद से अजहरुद्दीन की रिपोर्ट। मुल्क भर में गणेश उत्सव और मुहर्रम की मजालिस का इनेकाद किया जा रहा है। गुलबर्गा की अगर बात करें तो यहाँ भी इसका जोशो खरोश देखा जा रहा है। गुलबर्गा में हम आपको एक ऐसे मुकाम का दौरा करवाने जा रहे हैं जहाँ गणेश और अलम एक साथ बैठे हैं। हर दो जानिब अकीदत और एहतराम देखा जा रहा है। आप देखिए ये खास रिपोर्ट। मुझे इजाजत दें। आदाब। गुलबर्गा रोज़े अव्वल से ही गंगा जमनी तहजीब का नुमाइंदा शहर रहा है। गुलबर्गा में कई एक मकामात पर मस्जिद और मंदिर साथ साथ हैं। सदियों पुरानी ये तहजीब आज भी पूरे आबोताब के साथ जारी है, जिसकी मिसाल ये गाजीपुरा में गणेश मंडप और ये मुहर्रम के अलम है। दोनों एक साथ बैठे हैं। एक जानिब गणेश भजन हो रहे हैं,
तो दूसरी तरफ दरूद व सलाम भी पेश किया जा रहा है। हर दो जानिब शिरकत करने वाले एक ही लोग हैं। पीर पंजतन के इस अलम के सामने हो रहे दरूद व सलाम में हाथ बांधे एहतराम से खड़े ये कोई मुसलमान नहीं हैं, बल्कि ऐसे हिंदू भाई हैं जो दूसरे मजाहिब का भी दिल से एहतराम करते हैं। दरूद व सलाम के अल्फाज इनकी समझ में शायद नहीं आ रहे हों, लेकिन अदब व एहतराम की खातिर हाथ बांधे खड़े हैं। और हम त्योहार बाजार वाले मिल के ही करते हैं। हमारे गणेश जी का भी करते हैं, पंचपीर दरगाह का भी करते हैं, ये मुहर्रम का भी करते हैं। हर साल इसमें हम शामिल रहते हैं और साहिब हमारे इन्हों भी हमारे को बहुत कोऑपरेट करते हैं। हम सब बाजार वाले भी बहुत कोऑपरेट करते हैं उनसे। हम मिलजुल के रहते, हम जात पात कुछ नहीं देखते। मेरा उम्र है 45। अभी मैं देख रहा हूँ 35 साल से मुहर्रम बहुत अच्छा बनाते इधर। हमारे इधर गणेश भी बढ़ता है सामने। अभी 2 साल बाद मिल के आ रहे, तो सब जने मिल के ही कर रहे, ना गणेश ना मुहर्रम बोल के ऐसा कुछ भी नहीं। सब भाई भाई हम एकदम मिल के अच्छा जोर से बनाते। हमारे जो ना बुजुर्ग लोग जो ना उन्होंने भी जो ना महल्ले में जो ना फॉलो करते आए। हम भी उनके तरफ से जो ना ये करते आ रहे। मोहल्ले के पूरे लोग हम मिलजुल के करते ये त्योहार। गाजीपुरा का ये इलाका कभी मुस्लिम अक्सरियती हुआ करता था। वक्त के साथ साथ यहाँ के मुसलमानों ने दूसरे मोहल्लों की जानिब नकल मकानी की। अब ये हिंदू भाई ही मुहर्रम के इनेकाद में मुतवल्ली की हर तरह से मदद करते हैं। पूरे जो है यहाँ पर जो हिंदू मानव लोग हैं हमारे भाई लोग से ज़्यादा चलते हैं और दोनों चीज़ से प्रोग्राम करते हैं। संदल मुबारक का भी करते हैं और उर्स का, मुहर्रम आया तो मुहर्रम का, कोई चीज़ से भी नहीं। और हमारे को साथ में लेकर चल रहे हैं, हम भी उनके साथ चल रहे सब। बड़े उत्सव की बात है कि ये गंगा जमनी तहजीब, ये जो हमारी जो परंपरा है, खासकर हैदराबाद कर्नाटक में। अभी हम यहाँ गणेश को भी देखे, हमने मुहर्रम को भी देखे। आप गांव में चलिए कि मुहर्रम मनाने वाले भी वही लोग, गणेश मनाने वाले भी वही लोग रहते। तो ये हमारा गंगा जमनी तहजीब है। हाथ की तरह दिलों को भी मिलाए रखना, फूल यकता के हर एक समत खिलाए रखना, दीप मस्जिद का हो या कोई मंदिर का दिया, खूने दिल दे के बहरहाल जलाए रखना। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए गुलबर्गा से जवाद मीर की रिपोर्ट।